السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں مجاہد خان اور رئیسہ کاظمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں 10 کروڑ ڈالرز کی لاگت سے گاڑیاں اور پرزے تیار کرنے کے یونٹ کا افتتاح کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیا سال ملک میں اقتصادی ترقی کا سال ہوگا۔ مواصلات کے وزیر نے آج سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے حزب اختلاف سے کہا ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کی بجائے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا فورم استعمال کرے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ آج آن لائن ویزے کی فراہمی کے نظام کے آغاز کے پہلے دن تقریباً 2 لاکھ درخواستیں وصول ہوئیں۔ وزیر خزانہ نے سرکاری ملازمین کے مسائل کے مؤثر حل کے لیے تنخواہوں اور پینشن کے موجودہ نظام پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور بھارت نے آج ایٹمی تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ کیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہے، تاہم بھارت کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ اقدامات اور بیانات کے باعث علاقائی امن و سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے جعلی مقابلوں میں بے گناہ نوجوانوں کے قتل کی مذمت کے لیے آج مکمل ہڑتال کی گئی۔ کانگو کے علاقے بینی میں متحدہ جمہوری افواج کے ایک حملے میں 25 افراد ہلاک ہو گئے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابر اعظم کو سال کا بہترین کرکٹر قرار دیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج اسلام آباد میں 10 کروڑ ڈالرز کی لاگت سے گاڑیاں اور پرزے تیار کرنے کے یونٹ کا افتتاح کیا، جہاں معمول کے ماڈلز کے علاوہ الیکٹرک گاڑیاں بھی تیار کی جائیں گی۔ چینی کارساز کمپنی MG موٹرز رواں سال کے وسط میں پاکستان میں ان گاڑیوں کی تیاری کے لیے سرمایہ کاری کا آغاز کرے گی۔ وزیر اعظم نے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین صنعتی ترقی میں پاکستان کا سب سے بڑا اتحادی ہے، جو صنعتی ترقی کے ذریعے ملک کی اقتصادی ترقی کے اہداف کے حصول میں معاونت کر رہا ہے۔ پچھلے 30-35 سال میں چائنا نے جس سپیڈ سے ڈیولپ کیا اور جو طریقہ ان کا ڈیولپمنٹ کا ہے وہ سب سے زیادہ پاکستانوں سے سیکھ سکتا ہے۔ ان کی ڈیولپمنٹ کا جو ماڈل تھا، انہوں نے کیسے انڈسٹریلائز کیا، کیسے اسپیشل ایکسپورٹ زونز بنائے، باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آئے اور اس انویسٹمنٹ سے پھر انہوں نے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی، انہوں نے انسینٹیوائز کیا ان کو، اس سے ان کی دولت بڑھی۔ جب ملک کی دولت بڑھی تو انہوں نے لوگوں کو غربت سے نکالا۔ چائنیز کے ساتھ ہم بیٹھ کے پوری پروگرام کریں گے کیسے ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں، ہم چائنیز سے پوری ہیلپ لیں گے۔ تو ایک تو انڈسٹری کے اندر، دوسری ایگریکلچر۔ عمران خان نے کہا کہ موجودہ حکومت چینی حکومت سے برآمدات میں اضافے کے سلسلے میں مشاورت کر رہی ہے۔ جو ہم چاہتے ہیں کہ ری لوکیشن ہو چائنیز انڈسٹری کی پاکستان میں، اسپیشل اکنامک زونز ہم نے بنائے ہیں، رشا کے 3-4 اور جو ہمارے زونز ہیں۔ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ادھر چائنیز انڈسٹری کو ہم اٹریکٹ کریں، ان کو ری لوکیٹ کروائیں اور ادھر سے پھر کوشش کریں کہ وہ پھر ایکسپورٹس کریں پاکستان سے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نیا سال 2021 اقتصادی ترقی کا سال ہوگا، جس میں پاکستان مختلف چیلنجوں سے نمٹنے کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھے گا۔ انہوں نے کہا کہ نئے سال آمدن میں اضافے اور غربت کے خاتمے کی غرض سے صنعتوں کے لیے کاروبار دوست پالیسیاں اور اقدامات دیکھنے کو ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں تعمیرات اور ٹیکسٹائل کی صنعتیں کورونا وائرس کے باعث پیدا ہونے والے منفی اثرات کے باوجود ترقی کر رہی ہیں۔ چینی سفیر نونگ رونگ نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک ایک گیم چینجر منصوبہ ہوگا، جس سے اقتصادی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا اور مختلف شعبوں میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یقین ظاہر کیا ہے کہ انہیں اپنی 5 سالہ مدت مکمل ہونے پر عوام کی زندگیوں میں بہتری لانے میں کامیابی ملے گی۔ عمران خان نے آج شام ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں کہا کہ وہ اشرافیہ کے نمائندے نہیں بلکہ عوام کے وزیر اعظم ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اچھا وقت آئے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جب وہ برسر اقتدار آئے تب ملک بھاری قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا اور تمام ادارے غیر فعال ہو چکے تھے۔ تاہم اس صورتحال سے پیدا ہونے والے مسائل سے نمٹنے کے لیے انتھک محنت کی ضرورت ہے۔ ایک سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ وہ ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کے نظریے پر ہرگز سمجھوتا نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی قوم کے وزیر اعظم اور وزراء بدعنوانی میں ملوث ہوں تو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔
वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता माह रिकॉर्ड बरामदात के हुसूल पर तमाम बरामद कुनिंदगान को मुबारकबाद दी है, जिसमें गुज़श्ता साल की निस्बत 18% इजाफा देखा गया है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने इस पेशरफ्त को सराहा और बरामद कुनिंदगान पर जोर दिया कि वो इस रुझान को जारी रखें। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी हुकूमती पॉलिसी का चौथा सुतून बरामदात में इजाफा करना है और बरामदात के कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए हम मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के इलाके तरनौल में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक पनाहगाह का इफ्तिताह किया और नए साल की पहली शाम गरीब और ज़रूरतमंद अफराद के साथ गुजारी। ये सहूलत पाकिस्तान बैतुल-माल और तुर्की की सकाफत और सियाहत की वजारत के ताउन से कायम की गई है। पनाहगाह में गरीब अफराद को मुफ्त नाश्ता और रात का खाना फराहम किया जाएगा। पनाहगाह में ख़वातीन के लिए अलहदा 10 बिस्तरों का भी इंतज़ाम किया गया है। तरनौल में इस पनाहगाह के इफ्तिताह के बाद इस्लामाबाद में मौजूद पनाहगाहों की तादाद बढ़कर 5 हो गई है। वज़ीर आज़म ने शेल्टर होम में इस शिफा की तरफ से कायम किए गए टेली हेल्थ कियोस्क का भी दौरा किया, जहां उन्हें बताया गया कि इस सहूलत में दुनिया भर के 500 से ज़ायद डॉक्टरों की निगरानी में मरीजों को इलाज मुआलजे की मुफ्त सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने शेल्टर होम का भी दौरा किया और मुस्तहिक अफराद के साथ खाना खाया। गुर्बत के खात्मे के बारे में मामले खसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर, पाकिस्तान बैतुल-माल के मैनेजिंग डायरेक्टर ओन अब्बास बप्पी और तुर्की के सफ़ीर एहसान मुस्तफ़ा भी इस मौके पर मौजूद थे। उधर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज मुतादिद ट्वीट्स में कहा कि हम पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाने की जानिब बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 मनसूबों को मुकम्मल करना 2021 के नए साल के लिए मिराज में है, जिसमें एक हमारे शहरियों को सेहत की सहूलतें फराहम करना और दूसरा मनसूबा कोई भूखा नहीं सोएगा। इमरान खान ने कहा कि शहरियों की सेहत की अक्सर सहूलत की फराहमी का ये मनसूबा खैबर पख्तूनख्वा में शुरू कर दिया गया है और इसे जल्द पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि दूसरे सूबे भी ये प्रोग्राम शुरू करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में कोई भूखा नहीं सोएगा के नाम से प्रोग्राम शुरू करेंगे, जो हमारी इंतहाई ख्वाहिश है। उन्होंने कहा कि इस साल के इख्तिताम तक ये 2 मनसूबे हमें पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाने के हमारे हदफ के करीब ले जाएंगे। साल 2020 के बारे में वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के बायस इस साल हमारे और दुनिया भर के अवाम के लिए एक मुश्किल साल था, ताहम अल्लाह ताला के फजलो करम से हम ज़्यादातर मुल्कों के मुकाबले में बहुत बेहतर रहे। मवासलात के वज़ीर मुराद सईद ने हिज़्ब इख्तिलाफ से कहा है कि वो अपने ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय अवाम के मसाइल हल करने के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करे। उन्होंने आज सेनेट में हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की जानिब से पेश की गई एक तहरीक पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि वो कौमी ख़जाना लूटने वालों को NRO नहीं देंगे। अपने तासुरात में कायदे ऐवान सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बिला तफरीक एहतसाब पर यकीन रखती है। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि ज़राए इब्लाग हुकूमत की पुश्तपनाही में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं की किरदार कुशी कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ पर दबाव डालने के लिए नैब को आलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर केशुभाई ने कहा कि हुकूमत के पास गरीब आवाम के लिए कोई वक्त नहीं है। बहस में हिस्सा लेने वाले सेनेटरों में उस्मान खान काकड़, मीर कबीर अहमद, मोहम्मद शाही और मोहसिन अजीज शामिल थे। ऐवान का इजलास पीर को तीसरे पहर 3 बजे होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ पार्लियामेंट में कौमी मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार है, ताहम एहतसाब के जारी अमल पर कोई बातचीत नहीं होगी। आज पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से बातें करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया है कि बदउनवान अनासिर को NRO नहीं दिया जाएगा। आप खुद आए दिन ये दर्श देते रहे हैं कि पार्लियामेंट सबसे मुकद्दस फोरम है, तो आइए पार्लियामेंट के फोरम पर हम बात कर सकते हैं। क्या आपका एजेंडा है, रखिए सामने, NRO को एक तरफ कर दीजिए। एहतसाब के अमल से जो नजात का जो मंसूबा है और जो एजेंडा है उसको एक तरफ रख दीजिए। कौमी नौइयत के जो मसाइल है वो सामने रखिए, उन पर गुफ्तगू हो सकती है, तबादला ख्याल हो सकता है। हम सियासी लोग हैं और सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की क़यादत आज जाती उम्रा लाहौर में एक इजलास मुनक़िद कर रही है, ताहम इत्तेहाद में शामिल जमातों के दरमियान इख्तिलाफात पहले ही सामने आ चुके हैं। एक सवाल पर वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है।
फलस्तीन के मसले पर पूरी कौम जज्बाती लगा हुआ है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का कश्मीर की अहमियत के बारे में जो उनकी राय है और मसले फलस्तीन पर जो उनका मौक़िफ़ है वो हमारे लिए मशले राह है और इंशाअल्लाह रहेगा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि आज से मैनुअल वीज़ा सिस्टम को बंद किया जा रहा है क्योंकि हुकूमत ने अवाम की सहूलत के पेश नज़र 191 मुल्कों के लिए ऑनलाइन सिस्टम का वीज़ा सिस्टम का इजरा कर दिया है। वो आज पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। तफसीलात हमारे पेशावर के नुमाइंदे फलक नियाज से। आज पेशावर में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने उम्मीद जाहिर की कि ऑनलाइन वीजे के इजरा से इस निजाम से बदनवानी का खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि पहले ही दिन चीन और अफगानिस्तान के लिए 2 लाख के करीब वीजों की दरखास्तें मौसूल हो चुकी है। जिला करक में हिंदू मंदिर के जलाने के हवाले से उन्होंने कहा, करक में हिंदू समाधि के ऊपर जो वाक़या हुआ है, कल मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मिला हूं और महमूद खान साहब से मैंने कहा कि इसका सख्ती से नोटिस लिया जाए। इमरान खान की हुकूमत में ये चीजें काबिल कबूल नहीं है। शेख रशीद अहमद ने कहा कि मुल्क में तमाम गैर सरकारी तंजीमों का जायजा लिया जा रहा है और जो NGOs सियासी सरगर्मियों में मुलविस पाई गई उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सियासी जमातें हर किस्म की पाबंदियों से आजाद हैं, लेकिन अस्करी तंजीमों का, जो सियासी जमातों के अम्ब्रेला के नीचे अस्करी तंजीमें हैं, उनको बंद करने पर गौर कर रहे हैं। मुफ्ती किफायतुल्लाह के हवाले से उन्होंने कहा कि ये मामला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सिपुर्द कर दिया गया है जो कि कानून के तहत निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेशबहा कुर्बानियां दी है। वजीर दाखिला ने इस मौके पर खबरदार किया कि जो भी अनासिर पाक फौज के खिलाफ दुश्मन की जबान इस्तेमाल करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। PDM के लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने कहा कि हुकूमत लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए लाहे अमल तय करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने तनख्वाहों और पेंशन के मौजूदा तरीक़ाकार, अलाउंसेस मुराद और ज़राए आमदन के जायज़े की ज़रूरत पर जोर दिया है ताकि सरकारी मुलाजमीन के मसाइल का माकूल मालियाती हल सामने आ सके। वो पे एंड पेंशन की चेयरपर्सन नरगिस सेठी से बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। नरगिस सेठी ने पे एंड पेंशन कमीशन के काम के हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना को ब्रीफिंग दी ताकि सरकारी खजाने पर पेंशनर्स के बढ़ते अखराजात और तनख्वाहों और पेंशन के स्ट्रक्चर में बेकायदगियों के मसाइल को हल किया जा सके। उन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना को ज़ैली कमेटियों के काम के हवाले से बताया और माकूलियत और शफाफियत के असूलों पर पे एंड पेंशन के मौजूदा निज़ाम को दुरुस्त देने के अपने अज़्म का इयादा किया। जबूती कौमी पार्लिमान के सदर मोहम्मद अली होमेद और जबूती बहरिया के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अहमद दाहिर दाजा ने एक वफ्द के हमरा आज इस्लामाबाद में नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का खैर मकदम किया। बाद अज़ाम बहरिया के सरबराह के साथ अलग अलग मुलाकात में दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने बाहमी दिलचस्पी और ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया। एक ब्रीफिंग सेशन का इनेकाद भी किया गया जिसमें जबूती बहरिया के कमांडर को इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए पाक बहरिया के किरदार के हवाले से आगाह किया गया। दोनों मुल्कों की बहरिया अफवाज के दरमियान ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं, दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के हवाले से नई राहें तलाश करने पर भी गौर किया गया। फरीक़ैन ने दो तरफा बहरी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। पाकिस्तान और भारत ने आज अपनी एटमी तनसीबात और आलात की फहरिस्तों का तबादला किया। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज़ चौधरी ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान में एटमी तनसीबात और आलात की फहरिस्त आज वज़ारत ख़ारजा में बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले की गई। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में भारत की ख़ारजा उमूर की वज़ारत ने भारत की एटमी तनसीबात और आलात की फहरिस्त पाकिस्तानी हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले की। दोनों मुल्क पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी तनसीबात और हथियारों पर हमलों की रोकथाम के बारे में मुआहदे के तहत हर साल 1 जनवरी को एक दूसरे के साथ अपनी एटमी तनसीबात और आलात की फहरिस्त का तबादला करते हैं। पाकिस्तान ने भी मुल्क में मौजूदा 319 भारतीय कैदियों की एक फहरिस्त भारत के हवाले की है, जिनमें 49 सिविलियंस और 270 माहीगीर कैदी शामिल हैं। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक ये फहरिस्त आज इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के हवाले की गई। ये इक़दाम पाकिस्तान और भारत के दरमियान कौंसलर रसाई मुआहदे की दफ़ात के ऐन मुताबिक है, जिस पर 21 मई 2008 में दस्तखत किए गए।
معاہدے کے تحت دونوں ممالک سال میں 2 مرتبہ 1 जनवरी اور 1 जुलाई को अपनी तहवील में मौजूद कैदियों की फहरिस्तों का तबादला करने के पाबंद है। भारतीय हुकूमत ने भारत में कैद 340 पाकिस्तानी कैदियों के नामों की फहरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन को फराहम की है, जिनमें 263 पाकिस्तानी शहरी और 77 माहीगीर शामिल हैं। दफ्तर खारजा के तर्जमान जाहिद हफीज चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान तमाम हमसाया मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाह है, लेकिन भारत की तरफ से गैर जिम्मेदाराना इक़दामात और बयानात खित्ते के अमन और सलामती के लिए ख़तरे का बायस हैं। उन्होंने आज इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नई दिल्ली के बिलखुसूस उसके गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में इक़दामात फौरी तौर पर हल तलब हैं। तर्जुमान ने कहा कि भारत को बामानी मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जब तक भारत गैर कानूनी, गैर इंसानी और गैर मुनसिफाना इक़दामात से बाज नहीं आता, उस वक्त तक इलाकाई अमन और सलामती को बदस्तूर ख़तरा लाहक है। जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के अवाम की फलाह बहबूद और उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगा। उन्होंने कहा कि भारत दानिस्ता तौर पर कंट्रोल लाइन पर शहरी आबादी वाले इलाकों को निशाना बना रहा है और बिला इश्तियाल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हर बार भारतीय इश्तियाल अंगेजियों के रद्द-ए-अमल में इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है ताकि आम लोगों का जानी नुकसान ना हो। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार के बारे में एक सवाल पर जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि हम हमेशा से इस बात के कायल रहे हैं कि सियासी मुज़ाकरात पर मबनी हल ही अफगानिस्तान में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों की तरफ से जाली मुकाबलों में बेगुनाह नौजवानों के कत्ल की मजम्मत के लिए आज श्रीनगर और दीगर इलाकों में मुकम्मल हड़ताल की गई। हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी थी, जबकि जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी समेत हुर्रियत तंजीमों ने इसकी हिमायत की थी। नौजवानों के कत्ल के खिलाफ श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां, इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद रहे। भारतीय फौजियों ने श्रीनगर के इलाके लावेपुरा में बुध के रोज़ 3 कश्मीरी नौजवानों को एक जाली मुकाबले में शहीद कर दिया था। कबल अज़ीं काबिज़ भारतीय फौजियों ने गुज़श्ता बरस जुलाई में ज़िला शोपियां के इलाके अमशीपुरा में भी राजौरी के रिहायशी 3 नौजवानों को जाली मुकाबले में शहीद किया था। काबिज़ इंतज़ामिया ने नौजवानों के मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ लोगों को मुजाहिरों से रोकने के लिए आज पूरी मकबूजा वादी में सख्त पाबंदियां नाफिज कर दी थीं। ताहम जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग ने पाबंदियों के बावजूद श्रीनगर में भारत मुखालिफ मुजाहिरा किया। उधर कश्मीर मीडिया सर्विस के रिसर्च सेक्शन की तरफ से आज जारी की गई एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों के दौरान गुज़श्ता माह 14 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया। दरिया असनाम भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों के हाथों 69 कश्मीरियों के मुसलसल कत्लेआम की तरफ आलमी बरादरी की तवज्जो मबसूल कराने के लिए कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख के ज़ेर एहतिमाम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस पर जोर दिया है कि वो भारत पर कश्मीरी जमात दुख्तरान मिल्लत की रहनुमा आसिया इंदराबी के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात ख़त्म करने के लिए दबाव डालें और उन्हें मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह के नाम एक ख़त में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि भारत को कश्मीरियों की जारी तहरीक आज़ादी को कुचलने की खुली छुट्टी नहीं दी जा सकती। चीन ने सरकारी दवा साज कंपनी सिनोफार्म की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन को अवाम अन्नास के इस्तेमाल के लिए मशरूत मंजूरी दे दी है। चीन कौमी तिब्बी मसनूआत के महकमे के डिप्टी कमिश्नर चेन शेफी ने इस फैसले का ऐलान बीजिंग में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब एक दिन कबल इस कंपनी ने कहा था कि तीसरे मरहले में तजुर्बात में उसके मौसर होने की शरह 79% रही है। कांगो के इलाके बैनी में मुत्तहिदा जमहूरी अफवाज के एक हमले में 25 अफराद हलाक हो गए। बैनी के मुंतज़िम के मुताबिक फौज मुत्तहिदा जमहूरी अफवाज के जंगजुओं का पीछा कर रही थी जब उन्हें हलाक शुदगान की लाशें मिली।
अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि नए साल 2021 में अवामी जमहूरिया कॉन्गो, जनूबी सूडान, शिमाल मशरक़ी नाइजीरिया और वस्ती साहिल में एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ 4 लाख बच्चों को शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का ख़दशा लाहक है। एक बयान में यूनिसेफ ने कहा है कि इन मुल्कों को शदीद इंसानी बहरान का सामना है और उन्हें शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़, कोरोना वायरस की जानलेवा वबा और बड़े पैमाने पर क़हत साली के मसाइल दरपेश हैं। ईरान ने दुनिया को खबरदार किया है कि ख़ित्ते में अमरीकी फ़ौजी ताकत के मुज़ाहरे से ख़तरनाक हद तक कशीदगी में इजाफा हो जाएगा। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के नाम में ख़त्म खलीज के मुल्कों में फ़ौजी मुहिम जोई और अमरीका की तरफ से ईरान के बारे में गलत मालूमात, बेबुनियाद इल्ज़ामात और धमकी आमेज़ बयानबाजी की मज़म्मत की है। रेडियो खबरनामा जारी है। अब पेश है खेलों की खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज 12 कैटेगरीज में पीसीबी अवार्ड्स 2020 का ऐलान किया है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को 2020 में शानदार कारकर्दगी की बुनियाद पर साल का बेहतरीन क्रिकेटर करार दिया गया। इस अवार्ड के अलावा बाबर आजम को वनडे में इस साल 110 और टी20 में 55.2 की औसत से रन्स बनाने पर व्हाइट बॉल क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया। 4 टेस्ट मैचों में बाबर ने 167.6 की औसत से 338 रन्स बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच में कप्तानी के फराइज अंजाम देने वाले मोहम्मद रिजवान को साल के बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटर के एजाज से नवाजा गया। फवाद आलम की तरफ से माउंट मैंगनॉय में 11 साल बाद सेंचुरी बनाने पर एक आज़ाद ज्यूरी की तरफ से साल की बेहतरीन इनफरादी कारकर्दगी का एजाज दिया गया। कौमी ख़वातीन क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर आलिया रियाज को साल की बेहतरीन खातून क्रिकेटर करार दिया गया, जबकि फातिमा सना को उभरती हुई खातून क्रिकेटर का एजाज दिया गया। 8 टेस्ट मैचों में 20 विकेटें हासिल करने पर फास्ट बॉलर नसीम शाह को उभरते हुए बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर के एजाज से नवाजा गया। खैबर पख्तूनख्वा के कामरान गुलाम को डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। अंडर 19 की सतह से पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान बनने वाले रोहेल नज़ीर को मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का एजाज दिया गया, जबकि 6 मैच रेफरीज और 6 क्रिकेट एसोसिएशंस के कप्तानों ने आसिफ याकूब को एम्पायर ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए नामजद किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मायानाज मिडल ऑर्डर बल्लेबाज फवाद आलम ने कहा है कि न्यूजीलैंड के हाथों पहले टेस्ट में शिकस्त के बावजूद टीम के हौसले पस्त नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मेज़बान टीम को दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में शिकस्त देकर 2 मैचों की सीरीज का इख्तिताम बराबरी पर करेंगे। ये थीं खेलों की खबरें और अब पेश हैं तिजारती खबरें। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए तिजारत और सरमायाकारी अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि गुज़िश्ता माह पाकिस्तान की बरामदात 18.3% बढ़ी हैं। ये बरामदात $2.357 अरब रहीं। दिसंबर 2019 में ये बरामदात $1.993 अरब थी। आज अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि पिछले साल की निस्बत दिसंबर में बरामदात में $364 मिलियन का इजाफा हुआ है। दिसंबर के महीने में ये तारीख की बुलंद तरीन बरामदात है। उन्होंने कहा कि माली साल के पहले 6 माह में हमारी बरामदात 4.9% बढ़ी। इस माली साल के पहले 6 माह में बरामदात $12.1 अरब रहीं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के पहले 6 माह में ये बरामदात $11.5 अरब थी। बरामदात में ये इजाफा पाकिस्तान की मईशत की पायदारी का मुंह बोलता सबूत है। ये इस बात का भी सबूत है कि कोरोना वबा के दौरान हुकूमत पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलाने रहने की पॉलिसी ठीक थी। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में बरामदात बढ़ाने के लिए हमारे बरामद कुनिंदगान तारीफ के मुस्तहिक हैं। मरकजी कौमी बचत ने मौजूदा माली साल 2020-21 में 1 जुलाई तक 31 दिसंबर तक 6 माह में $42 अरब का मजमूई हदफ हासिल किया। मरकजी कौमी बचत के सीनियर अहदेदार ने APP को बताया कि मरकजी कौमी बचत ने $40,000 के बड़े प्राइस बॉन्ड्स और $25,000 के बॉन्ड्स मंसूख होने के बाद अपने सरमायाकारों को $316 अरब अदा किए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया कि KSE 100 इंडेक्स 679 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 44,434 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तजारती हुजम 642 मिलियन से जायद हिस्से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 578 मिलियन से जायद हिस्से का लेन देन हुआ था। आज पावर सीमेंट कंपनी के सबसे ज्यादा 35 मिलियन से जायद हिस्से का कारोबार हुआ। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 97,994 रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,73,641 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 46,908 मीट्रिक टन बरामदी और 1,26,733 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। दानिश्वर, मुसव्विर, सहाफ़ी और पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला
محمد حنیف رامے کی 14ویں برسی آج منائی گئی۔ ان کے حالات زندگی کے حوالے سے ہمارے نمائندے سجاد پرویز کی رپورٹ۔ حنیف رامے 15 مارچ سن 1930 کو ننکانہ صاحب میں پیدا ہوئے تھے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے ماسٹرز کرنے کے بعد مصوری کا بھی آغاز کیا اور اردو کے مشہور جریدے سویرا کی ادارت کے فرائض سنبھالے۔ وہ ایک اچھے مصور ہونے کے ساتھ ساتھ مصورانہ خطاطی کے ایک نئے دبستان کے بانی بھی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ میں نے 175 مختلف سٹائلز میں ایک لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمائش میں جگہ نہیں رہی تھی، اتنی زیادہ یہ تصویر۔ بعد ازاں انہوں نے ایک سیاسی اور ادبی جریدہ نصرت جاری کیا۔ سن 1960 میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ سے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ سن 1972 میں وہ پنجاب کے وزیر خزانہ کے عہدے پر فائز ہوئے اور سن 1974 میں وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے۔ سن 1977 میں انہوں نے اپنی سیاسی جماعت مساوات پارٹی کے نام سے تشکیل دی۔ انہوں نے کئی کتابیں تحریر کی جن میں پنجاب کا مقدمہ، اسلام کی روحانی قدریں، موت نہیں زندگی اور نظموں کا مجموعہ دن کا پھول کے نام سر فہرست ہیں۔ میرے منوا گاتا جا رے یہ نغمہ موسیقی کے شائقین کے ذہن میں ابھی بھی تازہ ہے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار رنگیلا تھے، جن کا آج یوم پیدائش منایا گیا۔ ان کا اصل نام محمد سعید خان تھا۔ رنگیلا نہ صرف ایک شاندار مزاحیہ اداکار تھے بلکہ وہ ایک دانشور بھی تھے جو فلم سازی کے فن سے بخوبی آگاہ تھے۔ وہ بیک وقت اداکار، ہدایتکار، پروڈیوسر، مصنف اور گلوکار بھی تھے۔ چل رے بیلوا اپنی ڈگریا ہے دور۔ معروف شاعر سید ضمیر جعفری کا یوم پیدائش آج منایا گیا۔ ضمیر جعفری بابائے ظرافت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ضمیر جعفری اخبارات اور جریدوں میں مزاح پر مبنی شاعری اور کالم سے مقبول ہوئے۔ اور اب سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ عالمی ادارے صحت نے مہلک کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے فائزر اور بایو ٹیک کمپنیوں کے تیار کردہ ویکسین کے ہنگامی استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ آج جاری کردہ میڈیا رپورٹس کے مطابق WHO نے کرونا وائرس کی وبا کے آغاز کے بعد پہلی بار اس ویکسین کی منظوری دی ہے۔ WHO نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ہنگامی استعمال کے لیے فائزر اور بایو ٹیک ویکسین کی منظوری دے دی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ دنیا کے متعدد ممالک نے کرونا ویکسین تیار کی ہے، تاہم عالمی ادارہ صحت نے ابھی تک صرف فائزر اور بایو ٹیک کمپنیوں کی تیار کردہ ویکسین کو ہی تسلیم کیا ہے۔ جنوری 2019 میں دنیا کے متعدد ممالک میں کرونا وائرس کے آغاز کے بعد اب تک اس مہلک وبا سے 18,26,000 سے زائد افراد ہلاک اور 8 کروڑ سے زیادہ متاثر ہوئے۔ پاکستان میں سال نو کے چاند اور سورج گرہن دکھائی نہیں دیں گے۔ محکمہ سے موسمیات کے مطابق سال 2021 میں 2 سورج اور 2 چاند گرہن ہوں گے، تاہم پاکستان میں اس سال کے چاند اور سورج گرہن دکھائی نہیں دیں گے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سال کا پہلا سورج گرہن 10 جون کو ہوگا، یہ جزوی سورج گرہن ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس سال کا پہلا چاند گرہن 26 مئی کو ہوگا، جو مکمل چاند گرہن ہوگا۔ سامعین، ملک بھر میں موسم کی صورتحال کیا رہی، آئیے سنتے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی بلوچستان، شمالی علاقہ جات کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں شدید سرد رہا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند پڑنے کا امکان، جبکہ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں کوہر پڑنے کی توقع ہے۔ آج ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت یہ رہے: اسلام آباد -1، لاہور 2، کراچی 6، پشاور 3، کوئٹہ -8، گلگت -5، مظفر آباد 1 اور مری کا درجہ حرارت -3 سینٹی گریڈ رہا۔ استور -12، گوپیز اسکردو -11، زیارت -10، کالام -9، ہنزا خلات -8 اور بگروٹ -7 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں لیہ کا درجہ حرارت -15، سری نگر اور اننت ناگ کا درجہ حرارت -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں $10 کروڑ کی لاگت سے گاڑیاں اور پرزے تیار کرنے کے یونٹ کا افتتاح کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیا سال ملک میں اقتصادی ترقی کا سال ہوگا۔
भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों की तरफ से जाली मुकाबलों में बेगुनाह नौजवानों के कत्ल की मजम्मत के लिए आज मुकम्मल हड़ताल की गई। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू चौधरी जमीर अशरफ, मुदीर होम डेस्क मकसूदुर रहमान, मुदीर फॉरेन डेस्क आयशा इफ्तिखार, मुदीर खेल और तिजारत की खबरें सजाद आमिर, मुदीर साइंस और फन की खबरें और कोऑर्डिनेशन एडिटर मुकद्दस रऊफ, मुदीर आला गुज़नफर अजीज खोखर, निगरान आला अब्दुल हादी मयार, पेशकश शुबह खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। मुजाहिद खान, रईसा काज़मी और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।